All right, so I think we have reached a critical mass. So let's begin. Hi, everyone. My name is Rahul Datta, and I manage the marketing here at HP. Today's topic is very close to my heart and my profession as well. So I wanted to be a part of this journey with you guys. But before we begin, let's just have a quick summary of why HP is doing this and what is the whole series. What is Be Unstoppable all about? We'll also touch about briefly on what to expect in this session. Well, if you know, HP actually started from a garage. Our founders, Bill and Dave, started this small company back in Palo Alto from a garage, and and they developed it over a period of time, never looked back. So we have this entrepreneurial DNA still in our company, and that's the reason we love to be a part of the business community here in India. So what actually we are trying to do with the Be Unstoppable series? It's basically like a small gesture wherein we are right now getting the best speakers and the best experts who can help you right now in various topics related to the business. In our last session, we've had we had people who've taken care of about the business leadership areas and some of the other areas that have been covered. In this session, we are talking about sales and marketing and how you can use them to grow your business. And we all know at this point of a time the consumer journeys are changing. The way that we are doing our business is changing, and that's the reason we need to change the way that we approach them. And I think that's one area that's closest to the sales and marketing divisions in your organization. Either you manage them by themselves or you have experts managing it for you. So, without any further ado, let me introduce our first speaker who will be taking the first session for us. So, today we have the privilege to have two gurus of sales and marketing. We've got Mr. Sonu Sharma and Mr. Dhaval Gupta. And today they will share the views on how to use sales and marketing for faster business recovery. Our first speaker is Mr. Sonu Sharma. He's the founder of Dynamic India Group, an author, an educator, a business consultant, and a successful entrepreneur. Right? We salute his Be Unstoppable spirit to influence lakhs of people to start their own business through his workshops and his YouTube sessions where we see millions of views every day. And before we introduce Sonu, I just want to probably share a small story that I've seen in one of his videos. So when Sonu graduated from his college, he reached out to his father and talked about now what's next for me. And his father talked about that you've got a loan of 3 lakh, figure out a way to now pay it. And he started his journey from there, and today he's a very successful entrepreneur. He's covered that journey over a period of time. He's the Be Unstoppable force behind his own business, and we love to have him here and open this session for all of us. So Sonu, very warm welcome, and over to you. Yes. Just a second. Thank you, Rahul. Thank you so much for inviting me here. बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए और वो 20 पहले का इंसिडेंट्स याद दिलाने के लिए. So it's been 21 years, 1998. मुझे याद है वो 1998 का वो दिन when I back from my college, having my college degree in my hands, और पिताजी को बोला कि आज हम ग्रेजुएट हो गए, so give some gift to me. हम आपको एक डिग्री दे रहे हैं 3 साल की मेहनत के बाद जो हमने ली है, आप हमको कुछ गिफ्ट करिए. तो उन्होंने हमको एक पेपर पकड़ाया जो बैंक के लोन का था और 3 लाख रुपए का लोन था. तो उन्होंने बोला we have a great gift for you. We have a loan of 3 lakh rupees and you have to pay. तो वहां से मेरा बहुत शानदार करियर शुरू हुआ. तो मालूम चल गया कि जिंदगी आसान नहीं होगी. I'll speak in Hindi and English mix. तो मालूम चला कि जिंदगी आसान नहीं होगी. और बहुत शुरुआत के दौर पे जब मैं 20-21 साल का था, तो एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि तकलीफें आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना देती हैं.
मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं आपसे अगले 40-45 मिनट्स डिस्कशन करने वाला हूँ। आई एम टू कॉर्पोरेट सेक्टर फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स, ट्रेवल अराउंड पूरे हिंदुस्तान में ट्रेवल किया है, और 30-35 कंट्रीज में पिछले 14-15 साल में विजिट किया हूँ, और आज करीब करीब 80+ कॉर्पोरेट्स के लिए मैं वर्कशॉप्स करता हूँ कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली। और लॉकडाउन के बाद तो बहुत ज्यादा स्केड्यूल बहुत टाइट हो गया। मेरे को लगा था लॉकडाउन के बाद छुट्टी मिल जाएगी यार, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है मेरी जिंदगी में कि छुट्टी मिल सके। सो तकलीफें आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा कर देती हैं दोस्त। विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीबॉडी, आप देखिएगा कि झुकी झोंपड़ी का जो बच्चा होता है उसको, वो बहुत मुश्किल से बीमार होता है, लेकिन हम लोगों के जो बच्चे रहते हैं वो ब्लैंकेट के अंदर भी उनको फीवर हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है। तकलीफें इम्यून सिस्टम अच्छा कर देती है। और आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का अभी कोविड-19 को लेके जो रिकवरी रेट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वी हैव रिकवरी रेट ऑफ ओवर 40%। 40% से ज्यादा लोग रिकवर होके आ रहे हैं। सिर्फ हॉस्पिटल को हाथ लगाने जाते हैं, 10-12 दिन घूम के वापस आ जाते हैं। कोविड का मजाक बना दिया हम लोगों ने। जोक्स अपार्ट, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और अपने घरों में होंगे। अगर ऑफिस भी होंगे तो विद ऑल द सिक्योरिटी मेजर्स। और मुझे आप सबको देख के, बहुत सारे लोगों को देख के आज लग रहा है कि आप सब लोग बहुत सुंदर, बहुत खास और बेहद खुश लग रहे हैं। मुझे आपको देख के लग ही नहीं रहा कि कोविड-19 को लेकर कोई इशू है। और ऐसे ही दुनिया में और हिंदुस्तान में हल्ला मचा रखा है, कोविड-19, बिजनेस जा रहे हैं, जॉब खत्म हो रही है, एमएसएमई खराब हो रहा है। आपको देख के मुझे कहीं से नहीं लग रहा यार कोई प्रॉब्लम हो रही है। क्या मैं ठीक हूं? आप सब तो बहुत सुंदर, खास, खुश लग रहे हैं। डज एनीवन हियर हैव एनी प्रॉब्लम इन लाइफ? आप हाथ उठा सकते हैं और मुझे सुनते सुनते अपने मन में ही हाथ उठा सकते हैं। डज एनीवन हियर हैव एनी प्रॉब्लम इन लाइफ? से यस और नो? यस, तो बहुत सारे लोगों ने बोला यस। सो आप में से कितने लोग अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सबने कहा कि यार सब लोग चाहते हैं कि प्रॉब्लम से छुटकारा हो जाए। तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। आज से 3 महीने पहले जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, तो आई वॉज ट्रेवलिंग टू माई ट्रेनिंग सेशन इन दिल्ली। तो मैं एक ट्रेनिंग सेशन के लिए ट्रेवल कर रहा था। तो ट्रेवल करते करते रास्ते में एक कब्रिस्तान आया है ना, ग्रेव यार्ड आप उसको बोल सकते हैं। तो उस कब्रिस्तान के अंदर जब मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो मैं पीछे बैठ के देख रहा था, वहां पर बहुत सारी कब्र थी। तो वहां बहुत सारे लोग सोए हुए थे, 100 से ज्यादा लोग होंगे, आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग। और उन सब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो 100 के 100 लोग बिना किसी प्रॉब्लम के सो रहे थे। अब कितने लोग अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हैं? दोबारा से हाथ उठाइए। तो आई हैव ए ऑप्शन एंड आई हैव ए सॉल्यूशन फॉर यू। मुझे नहीं लगता कि अब कोई अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता है। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स आर अ साइन ऑफ लाइफ। So long as we are alive, we shall have problems. The day we have no problems, we all will be dead. We cannot solve all the problems. That's true. We cannot solve all the problems, but we certainly can handle them. मैं जानता हूं आज बहुत मुश्किल है, कल और भी मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि परसों शानदार हो सकता है। और एक पुरानी कहावत है कि रुकावटें तो जिंदा इंसान के नसीब में हैं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के नसीब में है, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। सो प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी लोग आज मुझको सुन रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, ये चलता रहता है। तो आज का प्रेजेंटेशन मैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट अपनी स्क्रीन पे आपको लेके जाऊंगा, और स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ मैं आज अपना जो टॉपिक है वो डिलीवर आपको करना चाहता हूं। मुझे आप 2 सेकंड दीजिए तो सो कैन आई कैन share my screen with all of you. Just give me 1 minute. तो आपको स्क्रीन मेरा नजर आ रहा है तो मुझे एक बार हिंट कर दीजिए, सो दैट मुझे क्लियर हो जाए कि आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। सो एनीवन कैन हेल्प मी कि मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है क्या?
Yes. Thank you so much. Thank you, Vinay, Nitin ji. Thank you so much. So, एक बहुत सुंदर सा चेहरा इसमें बनाया हुआ है एंड मैंने जैसे कि बताया, यू ऑल आर लुकिंग सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, और लग ही नहीं रहा कि किसी को कोई तकलीफ है। और आपने ऑलरेडी मुझे बता दिया कि तकलीफ है, लेकिन तकलीफ का वो सॉल्यूशन नहीं चाहिए जो आप देना चाहते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो यहीं से शुरू होता है, और मुझे लगता है कि हम सब लोग समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है, जो पेंडेमिक की शुरुआत हुई है, इसका जो सोर्स है वो चाइना है। जैसा कि कहा जाता है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये कितना सच है कि चाइना से ही ये सारा का सारा कहानी शुरू हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नाउ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है, और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है ये अभी कितना सच है कितना नहीं है तो वक्त के साथ मालूम चलेगा, लेकिन स्थिति को, किसी भी चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 को करके, कोविड-19 के चल के, कि इंडिया का जीडीपी जो प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 21 में, वो डिप करेगा 0.8% तक, 0.8% तक डिप करेगा, जिसमें 5 सेक्टर मेजरली इंपैक्ट होंगे। एमएसएमई जो सबसे बड़ा सेक्टर है, जिसको मेजरली हिट बोल रहे हैं कि मेजरली हिट होगा, और ये सब इंडियन सेक्टर की बैकबोन्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है एमएसएमई। जो दूसरा सेक्टर सबसे ज्यादा हिट होगा वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है, एविएशन सेक्टर हिट होने वाला है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर हिट होने वाला है, एंड द लास्ट वन इज जिसको आप रियल एस्टेट सेक्टर बोलते हैं, ये हिट होने वाला है। तो ये 5 मेजर सेक्टर इस कोविड-19 को लेकर हिट होंगे। और जो सोर्स है, जो कहा जाता है, वो कितना सही है, कोई कितना नहीं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहता हूं बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। आज मैं सवेरे ही नितिन गडकरी जी को सुन रहा था, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आज पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां से अपने बिजनेसेस विड्रॉ करना चाह रही हैं, बहुत सारी कंपनीज विड्रॉ करना चाह रही हैं, और जो नंबर 1 एरिया है जहां पर वो लोग अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, वो हमारा देश है। वो हमारा देश है कि आने वाले टाइम के अंदर, साल 2 साल 3 साल के अंदर, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज जो वहां से निकलेगा, यहाँ पे इंडिया के अंदर अपने प्लांट्स लगेंगे, इंडिया के अंदर बहुत सारा एक्टिविटीज होगा। तो एमएसएमई जो आज परेशानी के अंदर है, एमएसएमई जिसमें आज दिक्कतें हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि ये 2-3 साल के अंदर अंदर ये बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। और एक पुरानी छोटी सी इंसिडेंट्स के साथ आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक शू मेकिंग कंपनी ने अपने एक सेल्स, क्योंकि हालांकि ये सेल्स का सेमिनार है तो मैं सेल्स की बात जरूर करूंगा। एक शू मेकिंग कंपनी ने एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को किसी कंट्री में मालूम करने के लिए भेजा कि उस कंट्री के अंदर शू का डिमांड कितना है, कितना डिमांड है वहां पर। वहां पर आप प्लांट लगाने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी कंट्री में, इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 करोड़ रुपीस, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो एक स्टडी करते हैं, एक सर्वे करते हैं कि वहां पर कितना बिजनेस हमारा चलेगा। तो जब एग्जीक्यूटिव उस कंट्री के अंदर लैंड हुए, तो लैंड होने के बाद उन्होंने देखा एक बहुत हैरान करने वाली चीज, और वो ये थी कि उस पूरी कंट्री के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो जूते पहनता था। सब लोग ऐसे ही घूमते थे बिना जूतों के। सो वापस आया और उसने अपने सीनियर को रिपोर्ट किया कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा, आप मत लगाइए, क्योंकि वहां किसी को जूते की जरूरत नहीं है। बड़ी पुरानी सी कहानी है, लेकिन इसका मर्म बहुत शानदार है, सीखने को बहुत कुछ है। तो उसके जो सीनियर मैनेजमेंट था, उन्होंने किसी दूसरे सेल्समैन को डिप्यूट किया सर्वे करने के लिए। दूसरा सेल्समैन उतरा, उसी कंट्री में उतरा, एयरपोर्ट से उतर के उसने वही मंजर देखा जो पहले वाले ने देखा था। किसी ने जूता नहीं पहन रखा था। उसने वहीं से कॉल लगाया अपने एग्जीक्यूटिव को, जो उसके सीनियर थे, जो मैनेजमेंट में हेड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट है? बोला 10,000 करोड़ का। तो बोला सर आप डबल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबको जरूरत है, दे ऑल नीड शू, किसी के पास नहीं है। तो एक ही समस्या को देखने के दो अलग अलग तरीके हैं दोस्त। सो जहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ, जहां से लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम शुरू हुआ, मैं कहता हूं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नाउ अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि सारे के सारी कंट्रीज, सारे के सारी कंपनीज आज अपना बिजनेस वहां से मूव करना चाह रही हैं और बिल्ड करना चाह रही हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होने वाला है अगले कुछ सालों के अंदर।
और मैं जहां भी गया, मैं दुनिया में जहां भी ट्रेवल किया, मैंने एक बात हमेशा से सीखी है और सिखाई है, और एक फॉर्मूला मैं पूरे हिंदुस्तान में ट्रेवल करके लोगों को सिखाता हूं। मैं आपको बताता हूं, आज एचपी में मैं पहली बार आया हूं, तो वंस अगेन थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो फार्मूला बड़ा गजब का है, और फार्मूला है कि E+R=O। बड़ा शानदार फार्मूला है, E+R=O। ये फार्मूला अगर आप और मैं समझ लें तो जिंदगी की कोई परेशानी हमको और आपको कुछ नहीं बिगाड़ती। E stands for event, R stand for response, and O stand for outcome. E+R=O कि इवेंट कभी भी इंपैक्ट नहीं डालते किसी की जिंदगी में। इवेंट किसी की जिंदगी में इंपैक्ट नहीं डालते, लेकिन इस इवेंट के ऊपर जो रिस्पॉन्स किया जाता है, उससे जो आउटकम आता है, वो आउटकम डिसाइड करता है कि आपका लाइफ कैसे होगा। इवेंट सबके लिए एक जैसे रहते हैं, लेकिन सबके रिस्पॉन्सेज अलग अलग होते हैं। सबकी जिंदगी में एक जैसा इवेंट होता है, लेकिन उसी इवेंट के ऊपर सबके रिस्पॉन्सेज अलग होते हैं। तो रिस्पॉन्स अलग होने से आउटकम अलग आता है, और सारा का सारा खेल रिस्पॉन्स का है, इवेंट का नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। ऑन December 10th 1914, 1914 दिसंबर 10 को एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ, और ये घटना न्यू जर्सी यूएस की है। December 10th 1914 न्यू जर्सी यूएसए के अंदर 10 बिल्डिंग के अंदर, आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा, 10 बिल्डिंग के अंदर आग लग गई। फायर, बहुत खतरनाक आग थी, और 10 की 10 बिल्डिंग धू धू करके जल गई। 6 to 8 फायर डिपार्टमेंट्स पहुंचे वहां पर आग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो आग कंट्रोल नहीं हो सकी। सब जगह केमिकल्स थे, तो केमिकल्स में ब्लास्ट हुआ और आग बहुत फैल गई। अब हैरानी की बात यह है कि वो 10 की 10 बिल्डिंग के जो मालिक थे, उनका नाम था थॉमस एडिसन। आप जान के हैरान हो जाएंगे। तो वहां के जो लोकल लोग थे, उन्होंने थॉमस एडिसन जो सामने ही घर में रहते थे, उनको नॉक किया कि थॉमस बाहर आओ। थॉमस बाहर आए तो उनको कहा कि तुम्हारी सारी फैक्ट्रीज, तुम्हारी सारी बिल्डिंग में आग लग गई, तुम्हारी जिंदगी की जितनी मेहनत थी वो सारी जल गई, अब क्या करेंगे। तो थॉमस ने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को जलते हुए देखा। दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को है। थॉमस एडिसन चुपचाप खड़े आग को देखते रहे, और अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को उन्होंने जलते हुए देखा। उनका 24 साल का लड़का चार्ल्स उनके पास खड़ा था। वो पास आया और उसने कहा कि पापा, सब जल गया। बच्चों जैसी आवाज में एडिसन ने अपने बच्चे से क्या कहा, ये सुनिए। बच्चों जैसी आवाज में एडिसन ने अपने बच्चे से कहा, चार्ली, जाओ अपनी मां को बुला के लाओ। गो एंड कॉल योर मदर। वो भी तो देखें आग कितनी खूबसूरत होती है। उन्होंने इतनी खूबसूरत आग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी होगी। इवेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ यू रिस्पॉन्ड, डू नॉट रिएक्ट, हाउ यू रिस्पॉन्ड। सारा का सारा खेल रिस्पॉन्स का है, आउटकम उसी से आता है। तो 21 साल पहले जब मैं घर पहुंचा अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेके, 22 साल पहले, तो मैंने पिताजी को बोला मैं ग्रेजुएट हो गया हूं। बहुत खुश था मैं, कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो उन्होंने कहा 3 लाख रुपए का कर्जा है, ये हमारी तरफ से तुझको गिफ्ट है, यू हैव टू पे द अमाउंट। तो इवेंट बहुत खतरनाक था। आज से 20-22 साल पहले 3 लाख रुपए वाज अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी। तो इवेंट बड़ा शानदार था, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स थोड़ा सा अलग था। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि जिंदगी शुरुआत में ही एक बहुत खतरनाक एग्जामिनेशन ले रही है, और अगर इस एग्जाम में पास हो गया तो खेल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने वहां से अपना करियर शुरू किया। तो आज जब कोविड-19 का इशू आपके और हमारे सबके सामने है, तो आज मुझे वो सब दिन याद आते हैं कि, और आप भी जो बिजनेस करते हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आप याद करिए जब आपने बिजनेस शुरू किया था, क्या सब आसान था क्या? सिर्फ 10 सेकंड के लिए सोचिए, आंख बंद करके अपने पास में जाइए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, मेरे कहने से अपनी आंख बंद करिए, और जितने साल पहले आपने बिजनेस शुरू किया था, अपने आप को पास में लेके जाइए और सोचिए क्या आसान था। फंड्स थे आपके पास, लोन लिया होगा, जगह लिया होगा, रेंट पे जगह लिया होगा, कितने चैलेंजेस होंगे, सारे काम खुद करते होंगे, हो सकता है कुछ लोग झाड़ू पोछा भी करते हो दुकान में जाके। कितना मुश्किल था, क्या आसान था? नहीं, आसान नहीं था यार। मैं एक बात बार बार कहता हूं कि गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। ध्यान से सुनिएगा, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। उसमें क्या बात है, उसमें तो गंगोत्री में उसको बहाओ तो गंगा सागर तक पहुंच ही जाएगा, उसमें क्या टैलेंट है उसका। लेकिन अगर टैलेंट दिखाना हो ना, तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ तैरना होता है, उल्टा, पानी के बहाव के विपरीत।
मजा तभी है, ताकत तभी दिखाई देती है। और ये सिर्फ कहानियां नहीं है दोस्त, ये मेरी जिंदगी का फलसफा है जो मैंने 20-21 साल में जिया है। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया टू व्हीलर से, और टू व्हीलर से खुश मत होइएगा, स्कूटर बाइक की बात नहीं कर रहा, मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो 1400 रुपए का साइकिल EMI पे खरीदा गया था। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं 80 से 100 कॉर्पोरेट्स के लिए वर्कशॉप करूंगा, पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ट्रेवल करूंगा। लेकिन मेरी लाइफ का फिलॉसफी मुझे एक बात सिखा गया अच्छे से कि इवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्पॉन्ड इंपॉर्टेंट है। डू नॉट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। सो आज बात करेंगे आपके टॉपिक के ऊपर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेजर क्वेश्चन आज यह है, हाउ टू सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 3 more months। मेरे हिसाब से हमको अगले 1 साल 2 साल का प्लानिंग नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई विजन ऑफ लॉकडाउन, अकॉर्डिंग टू माई विजन ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस, हमको अगले साल 2 साल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमको सिर्फ अगले 3-4 महीने के बारे में सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स आर मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ। Many say that MSME will get a bigger blow than big companies। कुछ लोग कहते हैं कि MSME को बड़ा झटका लगेगा बड़ी कंपनियों से, बट आई थिंक द अपोजिट। मैं बिल्कुल अलग सोचता हूं। Bigger companies will have bigger problems, small companies will have small problems, as simple as that। So I have some suggestions for all of you। The most important thing for MSME is to focus on survival, how to survive for the next 3-4 months। ज्यादा लंबा नहीं सोचना। ये सिंपल ऐसा है, जब मैं घर से जाता हूं अपने चंडीगढ़ के लिए, तो और जब मैं रात को ड्राइव करता हूं, तो रात को ड्राइव करते हुए जो मेरी हेडलाइट होती है वो मुश्किल से 20 मीटर देख पाती है, यानी 40-50 फीट तक देख पाती है। लेकिन मुझे जाना होता है करीब करीब 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर एक साथ नहीं दिखता, और देखने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अभी अपने को सिर्फ वो 20 मीटर देखना है, अभी अपने को सिर्फ वो 3-4 महीने देखना है दोस्त। 50 ओवर का मैच है, तो 50 ओवर में क्या करना है, डोंट थिंक ओवर थिंक जो करंट ओवर चल रहा है, इस ओवर में क्या करना है। हाउ टू सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 3-4 months इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेरे पास आपके लिए कुछ सजेशंस हैं। आई हैव 4 सजेशंस फॉर यू। आई हैव 4 सजेशंस ऑफ यू। अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिमाइज कैश आउटफ्लो, मैक्सिमाइज कैश इनफ्लो, टेक बोल्ड डिसीजंस, स्टैंड टुगेदर एज अ टीम। समझाता हूं। मिनिमाइज कैश आउटफ्लो, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सुना होगा आपने। मैं इसके आगे की लाइन बोलता हूं, खाली भी होता है। बूंद बूंद से अगर घड़ा भरता है तो खाली भी होता है। वी माइट हैव मेड अ लॉट ऑफ पेमेंट्स टू द वेंडर्स, सो एज अ कंपनी ओनर्स you have to call the vendors and ask for more time to make the payments for your raw materials and other things. As an owner, you have to give assurance that payment will be made. आप उनको assure कर सकते हैं कि payment दिया जाएगा। So I think most of the vendor will support you at this stage. बहुत सारे vendor आपको support करेंगे इस particular stage के ऊपर। The business owner should have an idea about all the expenditure in the company। सबसे important line है, ध्यान से सुनिए। All the business owners should have an idea about all the expenditure in the company. So you have to sit with the account team. You have to sit with the account team and understand all the expenses of your company. आपको अपने account team के साथ बैठना चाहिए और अपने सारे expenses के बारे में समझना चाहिए। You should understand that 80% of the expenditure, ध्यान से सुनिएगा, you should understand that 80% of the expenditure comes from 20% of your heads। आपका 80% खर्चा 20% हेड से होता है। So focus on all the heads and take steps to reduce to 30% or 20%। खर्चा कंट्रोल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे उद्योगों के लिए भी और बड़े उद्योगों के लिए भी। मिनिमम कैश आउटफ्लो इज मस्ट फॉर ऑल MSME। नंबर 2, मैक्सिमम कैश इनफ्लो। बहुत जल्दी बहुत छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं, फिर सेल्स के ऊपर आऊंगा। मैक्सिमम कैश इनफ्लो, एवरी कंपनी विल हैव अ नॉन मूविंग इन्वेंट्री। यू नो, हर कंपनी के पास नॉन मूविंग इन्वेंट्री होती है, like raw materials as well as financial products। So take steps to liquidate the non moving inventory first। सबसे पहले जो भी आपकी non moving inventory है उसको liquidate करने के बारे में सोचिए। Stop the credit sales and focus more on cash sales as
soon as possible. There will be a lot of payments to be collected. You have to send mails to all your creditors and focus on that area. It's very, very important. Now you have to take action on GST as well. You have to take action on GST refunds. If you haven't applied, अगर आपने अभी तक apply नहीं किया and you are eligible for GST, focus on that area and take steps for refund as well. Third one, take bold decisions. थोड़ा सा टची है, थोड़ा सा खतरनाक भी है, बट करना पड़ेगा यार दोस्त. अगर पैर में या हाथ में कांटा लग जाता है तो नीडल लेके निकालना पड़ता है. दर्द बहुत होता है, लेकिन मजबूरी में वो नीडल हाथ के अंदर चुभाई जाती है. तो ये उसी के अंतर्गत आता है, टेक बोल्ड डिसीजन. मजबूरी है मुझे स्टेप बताते हुए, लेकिन इसके बिना गुजारा नहीं है. ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज विल हैव नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज. ऑलमोस्ट all companies will have non-performing employees in the organization. Identify the 20%, at least identify the 20% of the non-performing employees and take action. And take action. बस कम में ही ज्यादा समझिएगा. Number 4. लेकिन इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं. जब मैं बोलता हूं टेक बोल्ड डिसीजन, तो मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, रीशफल द एम्प्लॉइज. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा. रीशफल द एम्प्लॉइज. Maximum employees need to be utilized in the areas where revenue is going to generate. Maximum employees need to be utilized in the areas where revenues is going to generate. This is the most important area for you to survive. ये सबसे ज्यादा important है आपके लिए survive करने के लिए. Reduce the team size to optimum level. अपने team size को optimum level तक reduce करने का बेहद जरूरी है. So I have 4 suggestions. How to survive for the next 3 months. Minimum cash flow outflow, maximum cash inflow, take bold decisions, stand together as team. ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर टेक्निकल नहीं, इमोशनल एस्पेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. Stand together as a team. You have to create a core group in the organization. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक core group create करिए, and you have to take collective decisions. Now individual decisions से important है collective decisions, कि आप सब साथ मिलके डिसीजन लीजिए. जो भी डिसाइड करें सब साथ मिलके लें, साथ मिलके करें, ताकि जब आप उसको इंप्लीमेंट करना चाहें तो आपका इजी हो, आपको अप्लाई करने में दिक्कत ना हो. क्योंकि जब साथ मिलके डिसीजन लेंगे तो कुछ बोल्ड डिसीजंस भी होंगे, इंप्लीमेंटेशन हमेशा आसान रहेगा. तो 4 सजेशंस फॉर यू. मिनिमम कैश आउटफ्लो, मैक्सिमम कैश इनफ्लो, टेक बोल्ड डिसीजन, स्टैंड टुगेदर एज अ टीम. और समझने का जरूरत है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, जिस भी फील्ड से हैं, अभी के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है. मुझसे कल भी मैं एक सेशन में था, करीब जूम मीटिंग था बहुत सारे लोगों का, तो एक कंपनी के साथ सेशन में था, तो उन्होंने बोला व्हाट इज द राइट प्रोडक्ट सर. कि आज के टाइम में इस पेंडेमिक के अंदर सबसे सही प्रोडक्ट कौन सा है. तो मैंने बोला सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है कि कभी कभी हम लोग प्रोडक्ट वो बेचते हैं जो हमारे पास होता है, लेकिन हमको प्रोडक्ट वो बेचना चाहिए जो कस्टमर की नीड है. दोनों में बहुत फर्क है. लाइक मैं उनको एक स्टोरी शेयर कर रहा था कि एक लेडी एक पिंजरा खरीद के लाई. एक लेडी एक पिंजरा खरीद के लाई जिसके अंदर एक बात करने वाला तोता था. वो पैरट बात करता था. तो जब वो पैरट को बाय कर रही थी उस शॉपकीपर से, तो जब उस पैरट का रेट शॉपकीपर ने बताया तो द रेट वाज टू हाई. तो लेडी को लगा कि यार ये तो बहुत महंगा है. तो उसने शॉपकीपर से पूछा कि इतना महंगा तोता क्यों है. तो उसने बोला मैम ये बोलता है, बहुत गजब बोलता है, इसलिए इसका रेट ज्यादा है. तो उसने बोला बोल के दिखाओ. तो शॉपकीपर ने उसको बुलवाया तो तोता बोला. तो लेडी वाज सो हैप्पी. शी ब्रिंग हिम होम. तो वो उसको अपने घर लेके आ गई, और जब उसको वो अपने घर लेके आई तो उसको पिंजरे में रख दिया. अब लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि वो तोता घर में नहीं बोलता था. अब वो घर में बोले नहीं. अब लेडी बहुत प्रयास करे, स्पीक स्पीक स्पीक, लेकिन अब वो बोलता नहीं था. तो वो दुकानदार के पास गई बहुत गुस्से में कि इतना पैसा ले लिया तुमने हमसे और तोता बोलता नहीं है, ठग लिया हमको, बेवकूफ बनाया हमको. तो शॉपकीपर ने बड़े प्यार से हैंडल किया. कस्टमर हैंडलिंग उसको आती थी, कहीं से कोर्स करके आया होगा, शायद मेरा ही स्टूडेंट रहा होगा. तो उसने बोला मैम जगह चेंज हो गई है तो टाइम लगेगा, पहले यहाँ बड़े पिंजरे में था, आपके पास छोटा पिंजरा रहेगा. तो आप एक काम करिए, आपके पड़ोस में अगर कोई दुकान हो वहां से बड़ा पिंजरा लाइए. तो तोता जब बड़े पिंजरे में बैठेगा तो थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा चलेगा,
फीलिंग अच्छी आएगी, अपनापन लगेगा, बोलेगा। तो लेडी कहती है ओके। तो लेडी गई उस तोते के लिए बड़ा पिंजरा लेके आई। अब उसको छोटे पिंजरे से निकाल के बड़े पिंजरे में डाल दिया। अब जब बड़े पिंजरे में डाला, एक दिन उसने वेट किया, तोता नहीं बोला। दोबारा उसके पास गई, उसने बोला तोता नहीं बोलता। तो उसने बोला आपने पिंजरा बोला बदल दिया, कल ही बदल दिया। तो उसने बोला आप एक काम करिए, जहां से आप पिंजरा लेके आई हैं वहां से एक लैडर खरीदिए, सीढ़ी खरीदिए। और वो जब आप सीढ़ी खरीदेंगी तो तोता को आदत होती है ऊपर नीचे होने की। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, मन बहलेगा, बोलेगा। लेडी बोलती है ओके। तो शी वेंट टू द स्टोर और वहां से वो लेडर खरीद कर लाती है प्लास्टिक का, और उसके पिंजरे के अंदर लगा देती है। एक दिन पूरा निकल जाता है, बड़ा प्रयास करती है, तोता नहीं बोलता। तीसरे दिन बहुत गुस्से से उसके पास जाती है, फिर माँ बहन की गालियां देती है और बहुत सारी उसको यू लैंग्वेज में बात करती है अपनी भाषा में। तो तोता नहीं बोल रहा। उसने बोला आपने सीढ़ी लगाई? बोला मैंने पिंजरा भी नया ले लिया, सीढ़ी भी नहीं ले ली, स्टिल नहीं बोलता। तो उसने कहा आप एक काम करिए, एक झूला खरीदिए। तोते को शौक होता है, झूले पे बैठेगा, झूलेगा, उसको थोड़ी फीलिंग आएगी और वो बोलेगा। लेडी बोलती है ओके। दुकान पे जाती है, फिर वो सीढ़ी खरीदती है। सीढ़ी तो खरीदी है, झूला खरीदती है। अब झूला खरीदने के बाद वो फिर से लगा देती है झूला अंदर। अब वो झूला लगाने के बाद पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन तोता नहीं बोलता। अब उस लेडी को बहुत गुस्सा आता है, अब उस लेडी को बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन जब वो निकलने लगती है उस शॉपकीपर के पास, तो वो तोते के पास जाके देखती है उसको और बहुत हैरान होती है उसको देखकर, और शॉपकीपर के पास बड़े मायूसियत से जाती है। शॉपकीपर बोलता है मैडम तोता बोला तोता मर गया, तोता मर चुका है। तो शॉपकीपर ने बोला मर चुका है? आपने पिंजरा? बोला पिंजरा भी बड़ा लगाया, सीढ़ी भी लगाई, झूला भी लगाया, मर गया। तो शॉपकीपर ने बोला मरते मरते तो बोला कुछ? बोला हाँ, मरते मरते एक बात मेरे को भूल गया कि जहां से ये सारा सामान लाते हो वहां कुछ खाने का मिलता है क्या? सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या है, सवाल ये है कि सामने वाले को क्या चाहिए। बहुत कुछ बदलने वाला है कोविड-19 को लेके। आपका थॉट प्रोसेस, आपकी सोच, प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो आगे लेके चलता हूं आपको। और लॉकडाउन इज अ ब्लेसिंग्स फॉर सेल्स पीपल। मैं खास तौर पे सेल्स का ट्रेनर हूं, तो मैं सबको बोल रहा हूं कि लॉकडाउन एक ब्लेसिंग है सेल्स के लोगों के लिए। और ये सेल्स के लोगों के लिए क्यों ब्लेसिंग है वो आपको जरूर बताऊंगा। लॉकडाउन इज a blessing for sales people. If you want to increase your sales, you have to understand major versus minor. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सेल्स समझना चाहते हैं तो आपको दो चीजें समझनी होंगी, मेजर और माइनर। दो तरह का टाइम होता है सेल्स के अंदर, एक होता है मेजर टाइम और एक होता है माइनर टाइम। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सर्वे है, वो समझाता हूं आपको, 2 मिनट के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज ऑल मेजर एंड माइनर टाइम। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 1928 के अंदर ऑल द सेल्समैन के ऊपर एक सर्वे किया। आप गूगल करेंगे यू विल गेट अ रिपोर्ट। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 1928 के अंदर दुनिया के सारे सेल्समैन पे, कुछ खास लोगों पे एक सर्वे किया कि ये सेल्समैन पूरे दिन में काम कितना करते हैं। तो जब पूरे दिन में काम कैसे करते हैं तो पता कैसे चलेगा काम कैसे करते हैं? तो पता ऐसे चलेगा कि उनको एक स्टॉप वॉच दी। तो स्टॉप वॉच देने के बाद उनको बोला जब तुम सेल्स मीटिंग में जाओ तो स्टॉप वॉच को ऑन करना और जब सेल्स मीटिंग खत्म कर लो तो ऑफ कर लेना। तो उन्होंने बोला राइट। तो जब वो सर्वे का रिपोर्ट आया, यू ऑल पीपल विल बी शॉक्ड टू नो कि एन एवरेज सेल्समैन वर्क 1 hour 4 minutes इन अ डे। एक एवरेज सेल्समैन पूरे दिन में मात्र 1 घंटा काम करता था, बाकी का 7 घंटा माइनर टाइम था। अब ये माइनर और मेजर क्या होता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के चांसलर ने एक कोट लिखा, वो कोट मैं आपके लिए पढ़ता हूं जो कि बहुत शानदार है। The time spent with a customer is a major time, rest all are minor time. सेल्समैन जितने भी हैं इस पूरे देश के अंदर, इस कोट को अपने दिल में बिठा लें, आपको जिंदगी में तकलीफ नहीं होगी। The time spent with a customer is a major time, rest all are minor time. आप जो टाइम अपने कस्टमर के साथ बिताते हैं वो मेजर है, बाकी सब माइनर है। और आपको पैसा, आपका प्रॉफिट, आपकी कमीशन सिर्फ और सिर्फ मेजर टाइम की वजह से आती है। आपने कहीं ट्रेवल करके जाना है,
पूरे 8 घंटे की जॉब में उस ट्रेवलिंग में जो टाइम लग रहा है, पैसे उसके नहीं आएंगे। आप वापस आ रहे हैं, पैसे उसके भी नहीं आएंगे। आपको जो पे आउट आएगा वो आएगा उस टाइम का जो टाइम आप कस्टमर के साथ स्पेंड किए हैं। तो लॉकडाउन इज ए ब्लेसिंग कि हमारा सारा का सारा माइनर टाइम एलिमिनेट हो चुका है। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फ्लाइट पकड़ने का जरूरत नहीं है किसी कस्टमर से मिलने के लिए, किसी की होम मीटिंग में किसी के होम पे जाने, किसी घर पे जाने की जरूरत नहीं, किसी के ऑफिस पे जाने की जरूरत नहीं है। तो सेल्स टीम के लिए लॉकडाउन एक ब्लेसिंग है कि उनका 90% का जो माइनर टाइम था वो सारा का सारा एलिमिनेट हो गया, और जो टोटल 10 घंटे थे वो मेजर टाइम है। अगर उसको इस्तेमाल करना आ गया तो मैं बताऊंगा आपको उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपका जो पूरे महीने का काम था, अगर आप चाहें तो वो 2 दिन में कर सकते हैं यहाँ पर, तो रिजल्ट उसी हिसाब से आएंगे। द टाइम स्पेंड विद द कस्टमर इज अ मेजर टाइम, रेस्ट ऑल आर माइनर टाइम। मेरे पास समय बहुत कम है, नहीं तो मैं आप उसको और डिटेल में खोल के बताता कि टाइम मैनेजमेंट सेल्स में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। आगे लेके चलता हूं 10 कदम। तो लॉकडाउन के अंदर मैं 10 सेल्स टिप आपको देना चाहता हूं, 10 सेल्स स्ट्रेटजीज इन लॉकडाउन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी से फटाफट आपको 10 सेल्स स्ट्रेटजी बताता हूं लॉकडाउन के अंदर जो आपको बहुत जरूरी है। मैं पिछले 2 महीने से एक दिन में करीब करीब 8-8, 9-9 जूम मीटिंग कर रहा हूं। बैक टू बैक जूम मीटिंग है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। मतलब सुबह 6 बजे जूम मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। यू विल बी शॉक्ड टू नो, क्योंकि मैंने किसी किताब में पढ़ा था और मेरी जिंदगी में बहुत काम आया कि आप जिंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं जब आप सूरज को जगाते हैं, और आप जिंदगी में असफल हो जाएंगे जब सूरज आपको जगाएगा। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, आप जिंदगी में कामयाब होते हैं, झंडे गाड़ते हैं जब आप सूरज को जगाते हैं, और आप जिंदगी में नाकामयाब हो जाते हैं जब सूरज आपको जगाता है। तो फर्स्ट मीटिंग एट 6 o'clock इज लॉकडाउन फर्स्ट सेल्स स्ट्रेटेजी। ये डिफिकल्ट होगा बहुत लोगों के लिए, ये बहुत डिफिकल्ट होगा उन लोगों के लिए जो अर्ली राइजर्स नहीं हैं, लेकिन हमको करना ही पड़ेगा। मैं बार बार एक ही बात समझाता हूं, आपको फिर से बताता हूं। जिंदगी में पैसे कमाना आसान है कि मुश्किल? मैंने किसी से पूछा। मतलब आगे बढ़ना, पैसे कमाना, अपनी कंपनी को 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपए ले जाना, ये सब चीजें आसान है कि मुश्किल? पैसे कमाना आसान है। तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ पैसे कमाना बहुत आसान है, कुछ लोग कहते हैं नहीं पैसे कमाना सर बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने बोला आपका विचार क्या है? तो मैंने बोला मनी मेकिंग इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस बट नॉट अ इजी प्रोसेस। मनी मेकिंग इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी, एंड ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। सुबह सैर करना बहुत सिंपल है, आसान नहीं है। आसान होता तो सब कर लेते। एप्पल से डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सेब खाना सिंपल है, आसान नहीं है। आसान होता तो रोज सूप खा लेते। और सैर करने में पैसा नहीं लगता, ना अमीर भी कर सकता है, गरीब भी। जूता है वो भी कर सकता है, जिसके पास जूता नहीं है वो भी कर सकता है। सिंपल चीजें आसान नहीं होती। सुबह 6 बजे पहली मीटिंग करना सिंपल है दोस्त, आसान नहीं है। सो पहला लॉकडाउन सीरीज का जो सेल्स के लिए, मेरे सेल्स के जो मेरे दोस्त हैं जो दुनिया का सबसे पुण्य का काम करते हैं सेल्स का, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे जो पुण्य का काम है वो सेल्समैन का है। फर्स्ट मीटिंग एट 6 o'clock, पहला जूम मीटिंग आपका 6 बजे होना चाहिए। ये मैं इसलिए बताता हूं, वो मीटिंग फ्रूटफुल हो कि ना हो मेरा मैटर नहीं करता। मेरा मैटर ये करता है कि आप 6 बजे तैयार होके, टाई लगा के या टी शर्ट या शर्ट में तैयार होके 6 बजे सिस्टम के सामने बैठ जाएं, यानी आपका दिन जल्दी शुरू हो। नहीं तो नॉर्मली अगर आपका 6 बजे का मीटिंग नहीं है तो हो सकता है आपका दिन 10, 11, 12 बजे तक भी शुरू हो सकता है। लेकिन अगर आपने 6 बजे मीटिंग करनी शुरू कर दी तो आप बहुत सारे लोगों से बहुत आगे पहले ही स्ट्रोक में निकल गए। फर्स्ट मीटिंग एट 6, मेरा जितना भी नेटवर्क है, मेरा जितना भी लोग हैं, उनको सब हिदायत है कि वो सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे अपने सिस्टम के सामने बैठ जाते हैं। तो फर्स्ट सेल्स टिप, मीटिंग एट 6, सूरज को जगाना है। सेल्समैन के लिए 19 न्यू नंबर्स फिलॉसफी, इसको मैं बोलता हूं 19 न्यू नंबर फिलॉसफी। ध्यान से सुनिए, आज कोविड-19 को लेके, कोरोना वायरस को लेके, अगर आप चाहते हैं कि इसका इंपैक्ट आप पे ना हो, या आप चाहते हैं कि इसका इंपैक्ट आप पे कम से कम हो, तो मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, और वो बात है ये कि आपको एक दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे कॉल करनी है। टेली कॉलिंग वाला काम करना है आपने। छोटा काम लगता है बहुत लोगों को टेली कॉलिंग, लेकिन कोविड-19 को लेकर, कोरोना वायरस को चल के, जब आप घर में लॉकडाउन है, जब आप कहीं जा नहीं सकते, तो आपका बिजनेस बढ़ाने में जो सबसे बड़ा वेपन है
my dear friends, is telecalling. Spend 3 to 4 hours of your life every day, जब तक ये इशू खत्म नहीं होता, on telecalling. डिटेल समझा सकता, अगर मेरे पास टाइम होता मैं मोटा मोटा समझा देता हूं. टेलीकॉल 19 न्यू मेंबर्स, हर दिन 19 नए लोगों को कॉल करिए विच बिलोंग टू देयर टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. इट इज एक्सपेक्टेड दैट 11% विल नॉट टॉक टू यू. ये एक्सपेक्टेड है कि इन 19 में से 11 लोग आपसे बात नहीं करेंगे. अगर आप सेल्स मैन है तो खास तौर पे आपके लिए है. 5 लोग आपसे बात करेंगे लेकिन आपका समय खराब करेंगे. 11 तो बात ही नहीं करेंगे. 5 बात करेंगे, आपका समय खराब करेंगे. 3 will take you seriously. 3 will take you seriously. Out of these 3, 1 conversion of every salesperson. एक कन्वर्ट होगा आपकी टीम में जितने भी सेल्समैन हैं उनके लिए. 19:1 फॉर्मूला बोलता हूं. It's very simple but not easy. Calling 19 people a day, it's very simple. You have to take a phone. Just call 19 people. It's a simple process but not an easy process. 11 लोग आपसे बात नहीं करेंगे, आपका फोन नहीं उठाएंगे. 5 लोग आपका टाइम वेस्ट करेंगे. 3 लोग सीरियसली आपकी बात सुनेंगे. एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट 1 कस्टमर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 3, 5 old customers. टेलीकॉल 5 old customers who used to deal with us earlier, जो पहले हमारे साथ काम करते थे but now lapsed with any of the reasons. It is expected that every third day after 15 calls, take my words very seriously, it is expected that after third day, यानी 15 कॉल के बाद 1 old customer will be ready to revive. मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं. Make this habit as your practice. Call 5 old customer every day. After third day, calling 15 customer, you will get 1 customer revived. हमको छोटा छोटा ही चुगना होगा, लेकिन जब छोटा छोटा बहुत सारा चुगा जाएगा तो बहुत सारा हो जाएगा. कुछ बड़ा करने की कोशिश मत करिए, बहुत छोटे छोटे काम सिस्टमाइज करने की कोशिश करिए. 4th, बड़ा इंपॉर्टेंट है. कॉल 1 कंपटीटर और कंपटीटर कस्टमर एवरी डे to find out what is happening in the market. This will enable you to keep your ear. This will enable you to keep your ear on ground reality. कि ग्राउंड में क्या हो रहा है आपको पता चलेगा. 10 very important sales strategy मैं आपको बताने जा रहा हूं. 5th most important, 5 existing customer. ये टेलीकॉलिंग हो रहा है सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉलिंग. 5 एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप डेली कॉल करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ हालचाल पूछ के फोन रख दीजिए. जी हां, 5 एग्जिस्टिंग कस्टमर को डेली कॉल लगाइए, कुछ मत पूछिए, हालचाल पूछ के फोन रख दीजिए. मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मेरा सेल्स का तजुर्बा है कि 70% बिजनेस आपको हमेशा एग्जिस्टिंग कस्टमर से आता है. ओनली 30% बिजनेस विल कम फ्रॉम द न्यू कस्टमर. 70% of the business will always come from the existing customers. तो अगर आप 5 existing customers को सिर्फ हालचाल के लिए फोन करते हैं, they will feel good. उनको लगता है कि नहीं, किसी ने तो याद किया, किसी ने तो पूछा हमारे बारे में, और आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा. नंबर 6, क्रॉस सेलिंग. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टाइम कम है तो हम गागर में सागर भरने का प्रयास कर रहे हैं. कॉल टू कस्टमर एवरी डे एंड मेक अटेम्प्ट टू क्रॉस सेल. दिस इज एक्सपेक्टेड टू गिव यू अ बिजनेस ऑफ 8 to 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग वॉल्यूम. आपका जितना एग्जिस्टिंग वॉल्यूम है उसका 8 से 10% क्रॉस सेलिंग काम करता है. राइट. नेक्स्ट वन, डिजिटल मार्केटिंग. ये सबसे बड़ा टूल है लॉकडाउन का. काश मेरे पास 5-6 घंटे होते और काश मेरे पास वो ऑडिटोरियम होता और शायद होटल होता कोई, तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग बता पाता. 1 मिनट में क्या बताऊं. डिजिटल मार्केटिंग बड़ा सिंपल है. डेडिकेटेड लर्निंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग 1 hour पर डे. 1 घंटा डिजिटल मार्केटिंग रोज समझिए, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस डिजिटल हो गया है. नहीं हुआ तो हो जाएगा. कोविड-19 को लेकर बाहर निकलना वैसे भी खतरे से खाली नहीं है. जहां 500,000 केस आ रहे थे, नाउ वी हैव 6,500 केसेस एवरी डे. जैसे जैसे लॉकडाउन की रियायत बढ़ रही है वैसे वैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं. तो हमारा बिजनेस डिजिटल करना ही पड़ेगा. वी हैव नो ऑप्शन. और आप अब ये नहीं बोल सकते कि अभी तक नहीं किया. अभी तक नहीं किया, चल रहा था, अब नहीं चलेगा, करना पड़ेगा. खुशी से करें, मजबूरी से करें,
करना पड़ेगा। डेडिकेटेड लर्निंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग है क्या? पूरा दिन में कम से कम 1 घंटा। मेक पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एज वेल। आपका सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया चैनल हैं आपका उस पर अकाउंट होना चाहिए और आप उसके ऊपर एक्टिव होने चाहिए। कभी किसी जमाने में सोशल मीडिया को लोग इज्जत नहीं देते थे, आज पूरा का पूरा बिजनेस सोशल मीडिया पे चलता है। आपके प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट होने चाहिए और मैं फिर कहता हूं मैग्नेट क्रिएट होनी चाहिए आपके पोस्ट से। कोई हायर करिए सोशल मीडिया एजेंसी जो आपके टीम को सपोर्ट कर सके। अगर आप सोशल मीडिया की कोई अच्छी एजेंसी हायर करेंगे, दे विल टेल यू हाउ टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स, योर ब्रांड्स ऑन सोशल मीडिया एज वेल, राइट। 9th, डेली नेस्क्रम मीटिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट के साथ, आपके जो कोर ग्रुप है उनके साथ डेली नेस्क्रम मीटिंग्स करें रोजाना। इस लॉकडाउन में जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है इससे निकल जाने का, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। द मोर यू कम्युनिकेट, चीजें आसान लगेंगी। द मोर यू लेस कम्युनिकेट, जितना आप लेस कम्युनिकेट करेंगे डिप्रेशन बढ़ेगा। बात करिए, बात करिए। कहते हैं बात करने से बरकत होती है, हरकत में बरकत होती है। डोंट सिट, टेक योर कॉल। आप कान पे लीड लगाइए, मोबाइल चालू करिए, 3 से 4 घंटा बात करना शुरू कर दीजिए। एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, वेंडर के साथ, बैंकर्स के साथ लगे रहिए, खाली मत बैठिएगा। और खास तौर पे इस लॉकडाउन के अंदर मेरी आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, डोंट वॉच टीवी एट ऑल। डू नॉट वॉच टीवी एट ऑल। नो नेटफ्लिक्स, नो गॉसिप्स, नो सोशल मीडिया फालतू फंड का अकाउंट। ओनली वर्क, वर्क, वर्क। सुबह 6 बजे आपका दिन शुरू होना चाहिए, रात को 11-12 बजे दिन खत्म होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, जितनी मेहनत आप पहले करते थे, अगर आप उससे डबल मेहनत करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं पूरी दुनिया में सोशल लॉकडाउन का कोई भी इंपैक्ट हो, आपके बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। मैं जिस बिजनेस के अंदर हूं, हम लोगों ने 40% सेल बढ़ाया है लास्ट मंथ में। यस, जिस प्रोडक्ट को मैं सेल करता हूं, जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड, हमने 40% अप्रैल में बिजनेस बढ़ाया है मार्च से, जबकि सेल्स में हमारा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकला। इज जस्ट बिकॉज ऑफ सम सिंपल स्ट्रेटेजीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिव्यू योर डे और प्लान फॉर द नेक्स्ट डे एवरी डे। रिव्यू योर डे एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट डे एवरी डे। हर दिन रिव्यू करिए 15 मिनट के लिए कि अगले दिन आपको क्या करना है। ये 10 पॉइंट याद रखिए और मैं नटशेल में कह रहा हूं, इन ऑल यू हैव टू मेड 40-50 कॉल्स अ डे। सेल्स की खास तौर पे टीम की बात कर रहा हूं। यू हैव टू मेड 40-50 कॉल्स अ डे। दिस विल टेक अराउंड 3 to 4 hours of your life every day. Lockdown is the new normal यार। All of us to understand the algorithm or working from home. हम सबको घर से काम करने का एल्गोरिथम समझना पड़ेगा as early as possible. The faster we learn, the faster we'll be able to bounce back in our business. जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी बाउंस बैक कर सकेंगे। और दिक्कतों से परेशान मत होइएगा। और मैं हमेशा से बोलता हूं, ये चैलेंजेस हमको और मैच्योर करने आते हैं। जितने ज्यादा चैलेंज होंगे हम उतने मैच्योर हो जाएंगे। समय मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपसे बहुत सारी डिस्कशन करता। उम्मीद करता हूं कि आज के बिताए गए जो भी 30-40 मिनट हैं, और हम याद रखें, आगे याद रखें। और जो भी हम लोगों ने 30-40 मिनट स्पेंड किए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट, मैं फिर भी बार बार आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि स्पेंड मैक्सिमम ऑफ योर टाइम बाय कॉलिंग यू पीपल। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें। घर पे भी अगर आप बैठे हैं तो सोशल मीडिया को उस तरीके से मत यूज करिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल ना करे। दोनों बातों में बहुत गहरा फर्क है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल ना करे। और डिफिकल्टी में से अपॉर्चुनिटी निकलती है, डिफिकल्टी में से अपॉर्चुनिटी निकलती है। मेरी एक कहानी जो मैं कम से कम 10,000 बार सुना चुका हूँ, वो आज बड़ी सार्थक है। वो मैं हर प्लेटफॉर्म पे सुनाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं HP में पहली बार आया हूँ तो वो कहानी जरूर शेयर करूँ। मेरे YouTube पे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वो सुना हुआ है, तो आपने सुना है तो आपको दोबारा सुनने को मिल जाएगा, और जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए पहली बार होगा। और कहानी कुछ ऐसी है कि स्थितियां कैसी भी हों, हमको उसको अच्छे तरीके से लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। क्योंकि
दुनिया में संभावनाएं बहुत सारी हैं यार ना, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। और कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा का एक मंत्री था जो बड़ा अच्छा, उसका दोस्त भी था। अब उस मंत्री को एक प्रॉब्लम थी। तो मंत्री को प्रॉब्लम क्या थी कि वो पॉजिटिव बहुत था, उसको नेगेटिव बात समझ में नहीं आती थी। तो लोगों ने कहा कि राजा जी आपका जो मंत्री है ये इतना सुपर पॉजिटिव कैसे है? बोला यार पॉजिटिव होना तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है, लेकिन कुछ जरूर ज्यादा सुपर पॉजिटिव है। तो जो भी होता बुरा तो उसका एक ही डायलॉग उसको फिक्स था, वाह वाह क्या बात है, जो हुआ बढ़िया हुआ, जो हुआ बढ़िया हुआ। तो एक दिन राजा और उसका मंत्री साथ में बैठ के बातचीत कर रहे थे, गपशप मार रहे थे। तो एक जो कम्युनिकेटर था वो राजा जी के पास आया। तो रोशन ने राजा जी को कहा, राजा जी एक दुखद खबर है, आपकी माता जी का स्वर्गवास हो गया है। तो राजा को बहुत बुरा लगा, ये साथ ही बैठा था। बोला राजा जी वाह वाह बहुत बढ़िया हुआ। तो राजा को बहुत गुस्सा था कि यार मेरी माँ गुजर गई और ये ऐसी बात बोल रहा है, तो कुछ शर्म नहीं आती। उसने बोला बहुत बुजुर्ग थी राजा जी, बीमार थी, चलो अच्छा हुआ चली गई। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन हालांकि उनका दोस्त था तो राजा जी बेचारे वो कुछ कर नहीं पाते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। अब एक दिन की घटना कुछ ऐसी है कि राजा अपनी तलवार अपने हाथ से खुद साफ कर रहे थे। तलवार बड़ी शानदार थी राजा की। तो जब तलवार साफ कर रहे थे, दोनों साथ ही खड़े थे, तो तलवार साफ करते करते तलवार हाथ से गिर गई और राजा के पैर पे गिर गई, पैर का अंगूठा कट गया। ये महाशय साथ ही खड़े थे। तो उसने बोला वाह वाह क्या बात है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब राजा को जो गुस्सा था ना वो बिल्कुल ज्वालामुखी था, फट गया पूरा। राजा ने सैनिकों को बुलाया, सैनिकों इधर आओ, ले जाओ इसको जेल में डाल दो। अब जब सैनिक उसको ले जाने लगे तो मुड़ के देखा इसने राजा को, बोला राजा जी वाह ये भी बहुत बढ़िया हुआ कि मुझे जेल में डाल रहे हो। राजा ने बोला साला पागल आदमी, घनचक्कर की औलाद। राजा ने जो भी उसको बोला, बहुत गुस्सा आया राजा को। उसका पैर का अंगूठा कट गया, खून निकल रहा है और कह रहा बढ़िया हो गया, इसको जेल में डाल दिया, कह रहा ये भी बढ़िया हो गया। तो इस घटना के 3-3.5 महीने के बाद जो इसका क्लाइमेक्स है वो बहुत शानदार है। राजा शिकार खेलने गए, पैर ठीक हो चुका था, और शिकार खेलते वक्त मालूम चला कि सैनिक पीछे छूट गए और शिकार खेलते खेलते घोड़ा घने जंगलों में चला गया। और जाने के बाद राजा रास्ता भटक गए। अब जब राजा रास्ता भटके तो आदिवासियों ने, जो गहन जंगल का इलाका था, आदिवासियों ने पकड़ लिया। आदिवासियों ने पेड़ से बांध दिया राजा को और आदिवासियों ने कहा आज हम मां को नर बलि देंगे, नर बलि मां को दी जाएगी। तो राजा के जब वस्त्र उतारे गए स्नान कराने के लिए, क्योंकि प्रथा है कि बलि देने से पहले स्नान कराया जाता है बलि को, तो राजा के जब कपड़े वस्त्र उतारे गए और स्नान कराया गया तो उनके मुखिया ने देख लिया कि राजा का पैर का अंगूठा कटा हुआ है। तो मुखिया ने बोला होल्ड ऑन, हम लोग बलि नहीं दे सकते क्योंकि राजा के पैर का अंगूठा कटा है, तो ये अपूर्ण बलि है, मां क्रोधित हो जाएंगी, जाने दो। तो राजा को छोड़ दिया गया। मैन राजा वाज सो हैप्पी। वो घोड़े पे आया यार कि साला वो जो सेनापति था ना यार, वो ठीक बोलता था यार, अगर उस दिन अंगूठा ना कटता तो आज तो गर्दन कट जाती। बड़ा खुशी खुशी घर आया और सैनिकों को बोला उसको बाहर निकाल के लाओ। जैसे उसको बाहर निकाल के लाया, उसके खूब गले मिला, बोला आज से तू आजाद है। तो उसने बोला राजा जी बहुत बढ़िया हुआ आज आपने छोड़ दिया। राजा बड़ा खुश हुआ, लेकिन राजा ने कहा कि मुझे सारे रास्ते एक दिक्कत है कि ये तूने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर उस दिन अंगूठा ना कटता पैर का तो आज गर्दन कट जाती, बड़ी मुश्किल से बच के आया हूं, लेकिन पूरे रास्ते की दुविधा में रहा, बस उसका तू निवारण कर दे तो राजा आज से तेरे को बना देता हूं। तो उसने बोला पूछिए महाराज। उसने बोला देख मेरा अंगूठा कटा, मैं वहां पर पकड़ा गया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो मेरे साथ तो अच्छा हुआ था उस दिन, लेकिन तू तो जेल में था, तेरी तो कोई गलती नहीं थी, तूने तो फिर भी 3 महीने जेल का जीवन बिताया, रूखी रोटी खाई, यातनाएं सही, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? तो मुस्कुराने लगा, जोर जोर से हंसा। उसने बोला राजा जी आपका दोस्त था, अगर उस दिन जेल में नहीं जाता तो आप जंगल साथ ले जाते मुझे, आपकी तो अपूर्ण हो जाती महाराज, मेरी पूर्ण हो जाती, तो अच्छा किया आपने उस दिन जेल में डाल दिया। तो राजा ने बोला भाई तेरे को सैल्यूट है, तू हर चीज में पॉजिटिव होता है। सो कहानी बहुत शानदार है कि थिंक पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। कहते हैं कि जो अपने मन की हो वो बहुत अच्छी
जो उसके मन की हो वो उससे भी अच्छी। कभी कभी वो एक रास्ता बंद कर देता है, एक दरवाजा बंद कर देता है, तो हमारा ध्यान उस बंद दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन एक दरवाजा बंद होता है, 4 दरवाजे खुल जाते हैं, हमारा ध्यान वहां नहीं जाता। हो सकता है कोविड-19 के कारण बहुत सारे एमएसएमई के बहुत सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हों, लेकिन ध्यान से देखिएगा, आंख खोल के देखिएगा, आंख उठा के देखिएगा, 4 दरवाजे खुले मिलेंगे आपको। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे, इम्यून सिस्टम पे काम करेंगे, अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए। ये डिजीज बहुत जल्दी यहाँ से निपट जाएगी। हम भारत के लोग हैं, हमने अंग्रेज नहीं छोड़े, ये तो डिजीज है। हाँ, जरूर समय लग सकता है, इट विल टेक 6 months 9 months to 1 year। ज्यादा पैनिक क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, परेशान होने का जरूरत नहीं। हमारा इम्यूनिटी बहुत शानदार है। जब शुरू में आया तो लोगों ने बोला इंडिया आ रहे, मैंने कहा इंडिया का इम्यून सिस्टम बहुत शानदार है। आज 40-50% का रिकवरी रेट है, तो घबराने का जरूरत नहीं है, सब चीजें नॉर्मल होंगी और सारी सी जिंदगी फिर से पटरी पे आएगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू सो मच, एंड आई विल call Rahul to take over. Rahul, you can take over, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच सर। आई थिंक इस वक्त सभी यही बोल रहे होंगे, वाह वाह क्या बात है। We didn't want to stop you. There's such an insightful session, so many learnings. I'm sure every business owner right now must be thinking about all the things that you've just said. And itna positive, itna enthusiasm, it's all very infectious. Thank you so much, Sonu, for joining us today. Stay with us because we got one more speaker, and after that we'll take questions for you as well. Mera best part, I think, was about when you talked about that. Look at it like a 50-over match, but you have to take care of the current over right now. Next ball, current over, right? That's something which is very important. I think एक और बहुत important बात जो आपने cover करी थी, which is about digital marketing. चाहे आप पसंद करें या ना करें, at this point of a time we need to work on digital marketing, and I think for that we've got a perfect speaker. And that's how now let's switch gear and learn how we can leverage digital marketing for expanding our business. I think there is a lot of do's and don'ts and material out there. So what we've done today is we've got Mr. Dhaval Gupta, who's the executive director of CMS. They are one of the biggest Google partners in India, and he will help us to simplify ऐसी कौन सी 3 या 4 चीजें जो बहुत important है हमारे लिए at this point of a time to take our business online, and how can we leverage digital marketing for MSMEs today to kind of work towards that. So welcome, Dhaval, and over to you. Thanks, Rahul, and it is a pleasure to be here. It's also a tough act following up from Sonuji's session, but I'll do my best. Without spending too much time, let me talk about digital marketing. And I think today when we talk about SMEs, there is a huge amount of number of case studies that we have seen where digital marketing and technology adoption has played a huge impact in helping SMEs grow very, very rapidly. So I'll talk about that a little bit in detail, and I'm sure there will be more and more questions around that. So let me very, very quickly share my screen. Rahul, quick check. You can see my screen, okay? Absolutely, yes. Perfect. All right. So, today I'm going to be talking about not just from marketing point of view, but how SMBs can take a lot of benefit by taking their business online. And, very quickly to sum up, the current situation. The current situation is that India's growth is expected to grow at the moment at about 1.9% in 2021. So, there is earlier we were expecting about 6% growth. So there is a dramatic impact we are seeing immediately. I won't spend too much time on the initial slides because we are talking about a lot of impact from COVID, and I'm sure for each of your respective industries, you have already been reading material on what is the kind of impact you're seeing and so on.
So, without sort of spending too much time, Indian consumers and how they are adapting to the new normal is, I think, the more important thing to track as far as marketing is concerned, right? So social distancing and work from home is taking off. The domestic travel, of course, has gotten impacted in a very, very serious way. So these are some of the sectors that are getting impacted very seriously. So obviously, retail, ride sharing, dine out options. A lot of these sectors getting impacted in a negative way. Having said that, there is a positive side to this also, where there are increased searches for different kinds of areas and different kinds of opportunities. So, when we talk about consumers and sanitizer or mask, of course, personal hygiene and precautions is one area where there is a huge amount of interest currently. And not just in related to health, but also the number of news searches online has grown by 2 times. Similarly, games, online content through OTTs, also home delivery of various products. These are all areas that are seeing a huge surge in the current environment. Right? And I think what is really important to keep in mind is that this is a fundamental behavioral shift. A couple of weeks back, one of the industry leaders mentioned that almost 2 years of digital adoption has literally happened in a space of 2 months, right? So, so that is that behavioral change that is going to stay? That is an important question that a lot of businesses need to answer. Of course, in education, and this slide talks about how EdTech is transforming. And I think that's a very, very fundamental part, because it's traditionally been a very heavy brick and mortar. And also a lot of kids are now, for schools, for coaching, for colleges, are all sort of moving to digital very, very, very quickly. So anybody who was not on digital in education is having to adapt very rapidly to that. Sonuji also spoke about social media. Social media uptake has also sort of, as you can see, a big change, almost 25% increase in social across all platforms. So social media, people are spending a lot of time, and new consumers are making themselves, spending time and making themselves available on social media. So the question is, one for SMBs is, what are the new opportunity areas, right? And I think this is where it is very important for SMBs to be quick and adapt rapidly. Just before I get into the specific opportunities, one of the things that I spoke about different impact on different industries. Having said that, the number of first-time purchasers online across all these sectors, even some of them are negatively impacted, but all these sectors has seen first-time consumers online. That means that behavioral changes are shifting and people are moving online increasingly to buy products, all different kinds of products, right? So that means that there is a huge potential, right? So post-pandemic, there is a massive potential. There are going to be certain categories that are going to be spending less immediately. But in across all categories, we see that at a certain amount of time, there are going to be new opportunities, and consumers are going to try new things. They are going to shift online. And so what is the big lesson that emerges for SMBs out of this? There are three that I have put down here. One is that we need to pay attention to changes of consumer mindsets and their consumption behavior and lifestyle. All of you would be seeing your customers say new things and follow new, new behavioral changes, or how things are going to be in the post-pandemic time. I think this is an important time to take notice that, okay, what are those changes that consumers are going through? And I think that is going to allow for new business opportunities and new business potential. Be flexible. Right? You may have recently created an annual business plan for the new financial year and marketing strategy and investment plan. But this is the ideal time to be flexible, to make sure that you can make changes very rapidly and be open to adopting new things.
and be the engine, right? So I think it is important to also make sure that your engine is able to enhance consumer stickiness. It is able to understand what the consumers are saying and then take advantage of that in the consumption battlefield, right? This is, I think, a very good snapshot of how digital discovery has enabled SMBs, over the past decade or so. So the first generation of going digital was simply for an SMB to have a website, right? Let me have a website. Let me put something up online. And that was the first starting point and first parameter. The second point was then, can we engage customers more in the social media domain because they are spending a lot of time there? And in fact, can we reach out to newer customers in the social media space, right? So social media was really the second wave of enabling SMBs to go online and engaging with customers and bringing in more business. The third wave has been e-commerce, right? So sure, you've created online assets. You're now creating online content to engage with the customers. But ultimately, the business and e-commerce has to play a pivotal role in making sure that it gives you a strong business ROI. Right, so e-commerce is, and there are a lot of numerous aggregators today in the market, depending on whichever industry you are in, which is playing a very fundamental role in enabling e-commerce for SMBs. We are also hearing that there are going to be massive investments from platforms like Jio. And so there is a huge amount of focus to make sure that SMBs are coming online very, very rapidly. Each SMB, I think, will face that challenge of how you would be able to choose what is the right stack for you, technology stack, what is the right offering, and then how to go to market in an effective manner, right? And I think the fourth wave, which is where we are just scratching the surface, and this is going to be more important part of the future, is where there is a social media influenced e-commerce, right? So as things evolve further and further, social media is going to then start becoming very important in terms of the ROI story or the sales story, and how can that be maximized. And again, there are a whole lot of new platforms that are available for it, right? Some of the top trends, and I think this is a really nice snapshot. So I've picked just some of the larger or the top verticals. But as you can see, there is a whole lot of services, technology, products that are available that enable SMBs, right? Now, I'm not saying that these are the only platforms or products that are available that can be leveraged, but each SMB needs to identify what is the right mix and what is the right go-to-market strategy and what is the right approach that they need to then make sure that they are digitally savvy. Why should businesses and SMBs be looking to do that? So, quickly talking about some of the benefits for SMBs going digital. Compared to offline SMEs, online SMEs are able to increase revenues and profits by 2x. Right, so this is data from we have seen from Google. This is slightly broad data, but this is something that is enabling SMEs, and the reasons are that I think first and foremost it leads to higher efficiency and higher productivity. Right, so SMEs can reduce their marketing by almost 60%. Because a lot of customers can be sent to your online assets, and it also helps reduce operational costs by over 20%. This was in a study done by a couple of the largest e-commerce platforms in the country. This also allows for innovation across multiple operational fields. Right. Also, SMBs can reduce their turnaround time, and I think perhaps one of the most important is get accessibility to a much wider base of customers. At 51% of SMEs sell beyond their city, those who are online, compared to 29% who are offline SMEs. Right. So again, it gives you the ability to reach out to a much wider base of customers, and not just within the country, but also to international customers who may be looking at your products and are interested. Right, enriched customer experience. The social media part that we were talking about. Social media influencing
e-commerce. I think the customer experience here is starting to become very, very, very important. And so SMEs, I think the fundamental point we're trying to drive here is that SMEs can no longer ignore the digital trends, yeah, you know, and so how it impacts business or it is impacting your competition is something that you need to look at very closely. So very quick snapshot of the future. Sonuji spoke a lot about that, you know, maybe in a year's time, you know, a lot of things will get back to normal. So we're talking about the future and the growth. There is a huge opportunity which SMBs can uncover as a part of their digital strategy, right? So this is just to show that, you know, there is digital adoption along with various emerging segments. And if you're innovative and take initiative, then a lot of there are going to be newer opportunities and newer revenue streams available for each and every SMB out there. Specifically talking about marketing, and so what is the right kind of framework that your marketing engine or your go-to-market strategy should be having right now, right? In the short run, there is going to be a lot of uncertainty. So you must plan and you must keep in mind aftershocks. Some of the key things to keep in mind while planning for your marketing strategy is macroeconomic factors. This includes access to capital as well as, of course, the geopolitical situation. And I think this is starting to become a very important factor increasingly. Regulation. I mean, we've just sort of now coming towards the end of lockdown 4.0. So, you know, I mean, that's not really a regulation, but increasingly the government is going to talk about, newer regulation impacting different sectors. So you need to be very careful and make sure that the decisions that you're taking keep in mind regulation. Of course, the industry dynamics, how stable is your supply chain and distribution chains. Consumer behavior. We already spoke about this earlier, but your human behavior or consumer behavior is going to be very, very important. And then also, you know, the consumers are increasingly asking for contactless everything. I'm sure all of you have come across these videos on either, you know, social media, YouTube, whatever, which talk about how, you know, there is a setup for a manufacturing setup in the heartland, which is now sort of able to draw sanitizer without touching anything, right? So there are going to be lots of small innovations around this, and contactless economy or contactless everything is something to keep in mind for all of the SMBs, right? So adapt to create a marketing strategy that can switch from a defensive approach to an offensive approach. Why do we say this? Because, you know, currently you may be saying that, okay, you know, there is uncertainty, so we need to be careful how we market. But at the right time, when the opportunity starts coming back into the market, it is going to become really, really relevant to move quickly. The first mover advantage is going to help you gain market share because your competitors may not be advertising or may not be do marketing at this particular point of time. So, you know, it's a great time to be able to gain new customers when the opportunity is right and when the timing is right. Right. So market to your key constituents. So this is something that when we speak, we've been talking to a huge number of brands in the industry. We've been finding that, you know, it's very important for each and every company to identify their immediate area of influence. And we feel that immediate area of influence first and foremost actually comes and gets driven from your employees, followed by your customers and your partners. So it is very important that to have a marketing strategy that keeps in mind all three constituents, right? Your employees, customers, partners. You know, when we talk about employees, work from home and its policies start to become very, very important for a lot of businesses. So, you know, make sure that you have a strategy and you have a messaging that does create visibility and is inclusive to all these constituents. Right. So some marketing objectives and the guidelines that we have seen work very successfully in the industry create trust and value for the brand. This is a great time to reach out to customers, even if you don't have much of an agenda, but to create trust with your customers. Right? So demonstrate care, create a human touch. If you are sending a messaging out, then create a human message, and you can create content buckets around that. Build an immediate circle of influence.
and that is, I think, something that will serve you very, very well in the long run. And explore organic marketing tactics. Right? So this is a great time to, in a way, we've also done these exercises with various brands where we almost help them do a stress test for the brand. Right? So whoever is who are your set of customers, without marketing and with a pure organic marketing strategy, what is the kind of leverage or what is the kind of traction you can get? It's a great time to do a stress test to your brand. The second point here, ensure data is being captured across your entire marketing funnel. Right? So when we talk about digital, one of the things that digital really enables is that you should be able to capture a huge amount of data in terms of what is working for you and what is not working for you. Right? So marketing teams should ensure that their funnel is very well defined. And if you don't have a clarity on the funnel, then this is a great time to invest in that for both online as well as offline channels. You don't, by the way, I want to point out that you don't need to spend a lot of money in order to work out an effective marketing strategy at this moment, right? So even on a very, very, very limited budget, this is something that can be worked out, right? Continue marketing. If you are doing some outreach and you are creating content, make sure that you're not stopping your marketing completely. You may need to adapt your messaging, but make sure that you don't get into a complete blackout mode for your brand. And create hyper-local situations. So leverage your distribution chains, leverage your supply chains even to create marketing which is effective, because that is going to become the new touch point for a lot of businesses. Be flexible, be able to change your course quickly, your messaging, your plans, and so keep in mind, that you should be able to take short-term decisions rapidly as well, right? Now, digital focus, right? So we touched upon this earlier, and today for SMBs, there are a huge number of strategies that you can follow. These are 4 areas that are, I think, a must-have. When you already have a website, now you want to reach out in terms of your content. Social media, I think, will give you a good way to connect with the immediate area of influence, as well as bring in newer customers or attract newer eyes to your brand. Right? Search and programmatic marketing, right? So search engine marketing, and this is where Google is, of course, very, very effective and can be made to work in a highly ROI manner to make sure that your budgets are giving you strong leads, right? So I think a story there where, let's say you spend 100 rupees and how do you generate 500 rupees or 1000 rupees of business out of it is something that can be built very, very clearly for most industries in today's date. YouTube and OTT. So earlier we spoke about how consumers are spending a lot more time online, and a lot of their media consumption towards news and video is moving very rapidly to YouTube and OTT. So this is an area of opportunity. I think video is something that should be looked at, because video can be very high impact marketing. Again, you can make it cost effective, and you don't need necessarily a very huge budget to do video campaigning in today's date. So this is something that we encourage that all SMBs look at very closely. And ultimately, local listings, native ads, basically creating good content around your brand, custom content is going to lead to more trust again for your brand and make your brand more human. Very quickly, I have some data on social media audience profiles. So this is something that is available, of course, for Facebook. Similarly, Twitter, LinkedIn, now TikTok are all emerging platforms where there is great engagement. So you should be looking at creating steadily a strategy on how you can leverage social media effectively. Advantages of real-time bidding. So Google and in today's world is very rapidly becoming a tool that you cannot miss, because even if your website is there, a competitor may be advertising above your website result, right? So that means that you may end up losing out. So it's important to find the right kind of balance between what is the right advertising that you can do across all these platforms. So what it does help is amplify your reach. It will help you optimize a marketing budget and do all of that in a highly targeted manner, right? So what is important is that we are reaching out to audiences based on very specific requirements of age, geo, language, interests,
and other demographics, right? So you can even pick devices, etc., etc. So there is a lot of great targeting available there, and if would be very happy to later on, talk about this from an industry to industry perspective. Right? Maximize your content reach, gain access to mobile app users. That's something that's taking off in a big way across multiple industries, and gather marketing insights. I also want to touch upon programmatic. So programmatic is the new if I can call it like a higher version of, or a higher form of targeting for digital ads. And programmatic has a lot of benefits, because what you can do is that you can take a very targeted approach to customers and reach out to premium publishers. So more and more buyers in the industry are starting to consider programmatic. It gives you a higher efficiency and ROI on your campaigns. And all of this is done in real time. So there is a lot of automation, that enables, real time, again, targeting and data analytics, and therefore, able to understand what is working and what is not working. And in addition to that, there are, of course, many other strategies, right? So search engine optimization, influencer marketing. Today, I think from a digital point of view, we cannot really leave out work from home policies. You can create some very strong work from home policies to drive down costs, increase efficiencies, and improve productivity. Build a lot of hyper local focus. I think another another sort of trend that is starting to slowly pick up is D2C. So D2C is direct to consumers. This is where brands individually, or companies individually or directly, are trying to reach out to consumers rather than have a dependency on platforms like Amazon, Flipkart, or Snapdeal. Right. So this is a lot of brands are adopting this, and if you have the right tool set and the right technology, then this will actually give you a lot of benefit, because then you're not dependent on these other platforms to receive money and so on, right? And then you can also take benefit of a lot of government policies around Digital India and Startup India, right? So those were some of the things that I wanted to talk about and share in terms of what's sort of going on in the digital marketing ecosystem, how we can, I think we need to evolve in the post-COVID time. And I think there is going to be a huge amount of opportunity. So if you follow the customers to digital, automatically you're going to find a lot of benefits moving forward and in the future. Right? And with that, Rahul, I'd like to just sort of pass it back to you. And I don't know if I sort of completed it in the given time, but would love to take questions. Thank you so much, Dhaval. I think very well explained. At this time with digital marketing, I think that's a very important tool for any SMB. I've also heard that we can even target like a few kilometer areas. If I have a shop, or if I have a small business right now, and I have to kind of focus on a certain geo and make sure my ROI is optimized, then I can even target like a 3 to a 5 kilometer radius around me. And make sure that I get the right result, right? Absolutely. So the concept that you're talking about is geofencing, and you can today actually do it in a highly targeted manner within a very small area. And there are, again, a whole lot of great tools available. So yeah, that's what we're saying, that today the level of targeting that any organization can get to connect with the let us say you're a Kirana shop and you only want to target within a 2 kilometer radius, then you can do that. Great. So I want to invite Sonuji back, because we got some interesting questions. I'm going to throw at you because you're slightly ahead of the time. So I'll request if you can just keep the answers short and keep the curiosity alive. But I think got some really good questions. Okay. So one. How to prospect, how to convince customer if they are taking quotation from 7 vendors. Sorry. सोनू जी आपके लिए. सर क्या रिपीट? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ. हाँ सर. हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ. How to convince the customers when they are taking quotations from 7 vendors. Sir, there is a technique in sales. मतलब I'll try कि मैं उसको 1 मिनट में समझा सकूं.
कभी कभी ऐसा भी होता है सेल्स के अंदर कि आप कोई भी कस्टमर आपसे महंगा खरीद लेता है और कहीं से सस्ता नहीं खरीदता। मतलब एक बहुत अजीब बात है कि अगर कोई उसको कम रेट कोट कर रहा है, मतलब उसके पास 7 कोटेशंस हैं, 7 जगह से उसको डील मिला है किसी भी एक्स प्रोडक्ट का, XYZ किसी भी प्रोडक्ट का, और उसके पास अलग अलग 7 कोटेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि वो महंगे कोटेशन से प्रोडक्ट खरीद ले। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है जो देखी गई है। उसको हम सेल्स की भाषा में बोलते हैं कॉस्ट वर्सेस प्राइस। कॉस्ट वर्सेस प्राइस, क्योंकि कुछ चीजों का कॉस्ट सस्ता दिखता है लेकिन प्राइसिंग महंगी होती है। कुछ चीजों का कॉस्ट सस्ता दिखता है लेकिन प्राइस महंगा हो जाता है। तो लॉन्ग रन में प्राइस क्या आ रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग शॉर्ट रन का प्राइस देखते हैं, तो कॉस्टिंग तो कम दिख रहा होता है लेकिन प्राइसिंग उसकी बहुत ज्यादा होती है। मेरे पास कम टाइम है, नहीं तो मैं इसको और डिटेल में आपको समझाता कि कॉस्टिंग क्या होती है और प्राइसिंग क्या होती है। लोगों को कॉस्टिंग और प्राइसिंग एक जैसी चीज लगती है, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट अलग होता है, प्राइस अलग होता है। एक साइकिल है, तो मैं एग्जांपल छोटा सा दे देता हूं आपको, शायद ताकि आपका ऑडियंस को थोड़ा सा समझ में आ जाए। एक साइकिल है जो 5000 रुपीज का है और दूसरा दुकानदार वही साइकिल 4000 रुपीज का सेल कर रहा है, राइट। सेम साइकिल एक दुकानदार 4000 का बेच रहा है, एक 5000 का, तो कस्टमर 4000 की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, राइट, क्योंकि उसको लगता है कॉस्ट 4000 रुपए कम है। लेकिन जब मैं उसको समझाता हूँ एज ए सेल्स टेक्निक, तो मैं उसको बोलता हूँ उसका कॉस्ट तो कम है लेकिन इसका प्राइस ज्यादा है। तो वो पूछता है कॉस्ट कम है प्राइस कैसे ज्यादा है। तो मैंने कहा जब तू 4000 की घर लेके जाएगा तो उसका 1 महीने के बाद एक पेडल टूट जाएगा जिसकी कीमत होगी 400 रुपए। कुछ दिनों के बाद इसका टायर भी खराब हो सकता है जिसकी कीमत होगी फिर 400 रुपए। कुछ दिनों के बाद इसके हैंडल में प्रॉब्लम होगी जिसकी कीमत होगी फिर 500 रुपए। तो कॉस्ट तो 4000 थी लेकिन प्राइस 6000 रुपए होगी उसकी। तो तूने क्या कॉस्ट पिक करनी है कि प्राइस पिक करना है, ये कस्टमर को डिसाइड करना है। तो ये समझाया जाता है उसको। आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट कि उसमें वैल्यू कैसे डालें एंड सिर्फ प्रोडक्ट के आगे और क्या चीजें हैं जो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। देखो मैं सेल्स में एक बात समझता हूँ कि चीप एंड बेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो चीज चीप होगी या बेस्ट होगी। फिलॉसफी गलत है मेरी नजर में। Great. So, two more questions, Sonuji. One is that how do you remain so positive apart from your, always so positive in your stories? And एक मेरा भी question है that sir आपका diet chart क्या है? If you can also. यार ये पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो। मतलब इतनी एनर्जी आप मतलब from 6 o'clock till this time, I think it's very commendable. So, what's your personal secret of positivity? एक्चुअली क्या है राहुल, ये मेरे लिए काम नहीं है यार। तो जब कोई चीज आपके लिए काम नहीं होती तो आप थकते नहीं है उसके अंदर। शानदार, वेरी नाइस। आप काम लगेगी, जो भी चीज आपको काम लगेगी उसमें आप टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे। काम नहीं है मेरे लिए, मुझे मजा आता है सब करके। तो जिस चीज में मजा आता है उसमें आप थकते थोड़ी हैं। आप मूवीज देख लीजिए, 3 घंटे का मूवी, आप में एक भी उबासी नहीं आती। आप बुक रीडिंग करिए, 5 मिनट के बाद आपको उबासी आने लग जाती है। जिस चीज में आपको मजा आता है उसमें थकते नहीं है आप। आई एम एंजॉयिंग टॉकिंग टू पीपल। सर एक लास्ट क्वेश्चन है विच इज अबाउट कि डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी आफ्टर द लॉकडाउन, राइट? इन सम ऑफ द कैटेगरीज आई थिंक देयर विल बी डिफरेंट, बट आई थिंक फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज जहां पे डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, could be like even the customers might feel that necessity is also a luxury right now. So at that point of a time हम डिमांड को बनाएं कैसे? देखिए इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा लॉ है राहुल जी, कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये थोड़ा सा अजीब बात है लेकिन कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जैसे कि आप अपने घर का जब राशन खरीदते हैं, मैं देसी भाषा में समझाता हूँ, देसी आदमी हूँ, तो आप जब घर का राशन खरीदते हैं तो पर्चा बनाते थे पहले हमारे घर वाले कि क्या क्या लेके आना है, राइट? तो आप जब भी घर बैठ के पर्चा बनाएंगे तो आप शॉपिंग हमेशा कम करेंगे। आप मॉल जाके जब सामान लेके आएंगे तो शॉपिंग हमेशा ज्यादा करेंगे आप। क्यों? क्योंकि वहां आपको आंखों के सामने बहुत सारी चीजें दिखती हैं तो आप परचेज करके ले आते हैं। तो जो चीजें आपको जरूरत भी नहीं है लेकिन अगर वो सप्लाई की जाती हैं तो डिमांड ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी फंड डाल रही है, जैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज अभी उन लोगों ने अनाउंस किया है, जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं 3 दिन से पीएम साहब को,
कि जब वो पैसा लोगों की जेब में जाएगा, करीब करीब 30-35 करोड़ लोगों के घरों में, खातों में उन लोगों ने एक्स अमाउंट ऑलरेडी डाल दिया है, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। तब जो लोगों के पास पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली उससे जो साइकिल है वो चलना शुरू हो जाता है। आप कपड़ा खरीदते हैं, कपड़े वाला जूता खरीदता है, जूते वाला पान वाले को देता है, तो ये साइकिल रोटेट होना शुरू हो जाता है। जब पैसा बाजार में आएगा, धीरे धीरे जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू होंगी, जो इंडिया की तरफ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि वहां से लोग परेशान हैं, वहां से लोग बिजनेस विड्रॉ कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जब इंडिया में पैसा ऑटोमेटिकली आएगा तो ये साइकिल धीरे धीरे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। But I think दो last question हम पकड़ते हैं। एक है that what is organic marketing? So Dhaval, if you can just elaborate on that. What is organic marketing and how can you use it for growing your business? So organic marketing effectively refers to creating great content around your brand and reaching out to audiences. When we say organically, basically without any promotions across all the various channels that you may have. Right? So it includes your website, your social media platforms, WhatsApp, etc. But it is not part of paid marketing. Now, even organic marketing can have a very strong impact on a brand and very positive impact on the brand, right? So, in fact, a lot of the things that you may think of are as viral don't get viral because of paid marketing necessarily. The viral nature of a lot of content comes from the fact that organically it is getting spread very quickly. So yeah, organic marketing is something that if you can crack, any brand can crack, then it is going to really lead to a huge number of new eyeballs, new followers, something exciting, interesting. Hopefully, in a positive way. I think one great example will be like if I said right now कि सोनू जी ने नया TikTok चैनल शुरू किया है और आप जाइए देखिए सर, वहाँ। मैंने कोई टिकटॉक चैनल नहीं शुरू किया। आपने नहीं किया? लेट मी क्लैरिफाई यू, मेरा कोई टिकटॉक Very nice. नहीं है। मेरा सब लोगों ने किसी नाम से बना रखा है। मेरे नाम से फेसबुक पे 100 पेजेस हैं, मेरे नाम से यूट्यूब पे मैंने कुछ नहीं बनाया। मैं टिकटॉक से बहुत दूर हूँ। चलिए, it's a very good platform for you to confirm this and so great. But I think it's great, sir. आप अपने हर session में, you know, how you kind of work towards those hidden messages which are there for basically everyone to just open their mind, talk about things which are simple, but people don't probably put their attention on them over a period of time. So either through stories, either through examples, either through various real life scenarios that happened with you. So I think there are great stories. One last question for the session today is, what if I have to now start knowing about digital marketing from tomorrow? What are the 1 or 2 steps? And this is first we'll go to Sonu ji and then to Dhaval. Will be कल से मैं क्या करूं? कल से 2 चीजें मैं क्या करूं? I'm interested. I've got pumped up with your session. Everything is great. I loved the session. Now मुझे कल मैं क्या करूं? कल ऐसी 2 चीजें मैं शुरुआत में क्या करूं? So, मेरे हिसाब से धवल जी बेस्ट व्यक्ति हैं इसका आंसर देने के लिए, क्योंकि एक्सपर्ट वही हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो धवल जी आप भी मुझे बताइए, मैं भी सीखूंगा कुछ। सबसे पहले why the reason it is a little hard to answer the question because हर ब्रांड की एक maturity level अलग होती है। So depending on किस level of maturity पे आपका brand है, basis that one will suggest कि this is something that you go and do. I think given our audience and as far as SMBs are concerned, I think today that there is a huge amount of opportunity when we talk about leveraging different platforms, right? Now you can, as an organization, decide that I'm going to create my own platform, or if there is some existing tool or technology, then start doing that, because the central piece of effective digitization and marketing is today becoming more and more data. So आपके पास चाहे जितना भी अपना डेटा हो, उसको आप enhance और कैसे कर सकते हैं is something that I would push and recommend to all agencies. I'm assuming that content is obviously already there, but basis that you can then decide ki, what should be my strategy or what should be the new things that we should adopt. I want to add one thing in this, Rahul. जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चलेंगे, कल से जाएंगे, परसों जाएंगे,
उनको सिंपल सा मेरा सजेशन है कि ओवरनाइट सक्सेस के बारे में ड्रीम ना करें। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल ड्रीम ना करें कि कल से वो सोशल मीडिया पे आ जाएंगे और वो अमिताभ बच्चन टाइप फेमस हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना सोचें, ना उनका प्रोडक्ट हो सकता है एक दिन में। इट विल टेक सम गुड टाइम, इट विल टेक सम गुड टाइम। उनको रिपीटेड एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है, राइट। आपको टाइम लगेगा। तो मतलब कल से, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का मतलब नहीं है कल से आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस होने वाला है, राइट। सो इट विल टेक सम गुड टाइम। Right. Absolutely. Great. I think एक last suggestion है सोनू जी, वो हम लेते हैं because one of our attendees have also given us a suggestion. I think it's a great suggestion. I personally liked it. Is that I think instead of reducing the team, we can talk to employees. All of us can together can probably create a pool through which. जब मैं बता रहा था टेक बोल्ड डिसीजन, मैंने तभी उसमें एक वर्ड बोला था, नॉन परफॉर्मिंग पीपल। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग परफॉर्मिंग हैं और इस टाइम पे तो हमको और परफॉर्म करना चाहिए यार। करेक्ट। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट नॉन परफॉर्मिंग। तो हम सब लोग परफॉर्मिंग लोग हैं यार। तो जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। I know. Well, thank you very much, gentlemen. I think we had a great session. There was a lot of people on Facebook Live and on Zoom who joined us. We love to take your feedback. So once we close this session, there will going to be a feedback form that will appear on your screens. मेरी request है कि आप please उसको भरिए। हमारे साथ जुड़े रहिए इस Be Unstoppable वेब सीरीज के साथ। नेक्स्ट सेशन हमारा एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा, which is about security. People who are now going digital, but at the same time now because they are going digital from home, the security risk has also increased. आप एक अनसिक्योर नेटवर्क पे हैं, आपके डिवाइसेस आप और आपके बच्चे या आपकी फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं। देयर आर हैकर्स आउट देयर हु आर वेटिंग कि आप ऑनलाइन जाएं और वो आपका फायदा उठा सकें। कैसे फिशिंग स्कैम्स हो रहे हैं। वीव गॉट अ वेरी गुड स्पीकर दैट आई डोंट वांट टू रिवील राइट नाउ, बट आई थिंक प्लीज आप HP को फेसबुक पे लाइक करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे, एंड देन यू विल गेट ऑल दीज अपडेट्स। इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग। Right. So thank you very much, Sonuji. Thank you very much, Dhaval. I think it's a great session. Right. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye, Rahul. Take care, guys. Thank you. Thank you. Have a great weekend. Thanks.